In the last so many years of me teaching international relations, I must say that 2025 has been one year which has been very, very interesting, very, very happening. And Donald Trump is one such man and one such person who is the man of the moment. He is making it sure that he will be getting the limelight. He is making it sure that he will make it a reason to be in the news, in the headlines every day. And every day while sipping your cup of coffee and tea in the morning, reading the newspaper, you would be reading something or the other, an action and a reaction happening in geopolitics as a consequence and as a result of the Trumpian policies. And today, I want to discuss with you something which is very, very recent in the news and something which just broke out last evening, is that Russia wanting to withdraw, wanting to exit from yet again another treaty, which is the Intermediate Range Nuclear Forces Treaty. There have been certain treaties from which Russia has exited in the past, whether it is the New START Treaty or the Comprehensive Test Ban Treaty. Now, this is another treaty, another Cold War era treaty between Russia and America, between the then USSR and America, which is in the news. Now, why is it in the news? Let's talk about it. I am your educator, Kuber Singh, and it is a pleasure to discuss various topics with you from IR, from internal security, and even essay writing as well. Alright. Now, background क्या है? अभी हम पिछले कुछ 4-5 दिनों से देख रहे हैं that there have been tensions again. America is coming out with ceasefire plans. America is putting pressure on Russia that look, you agree to us, you agree to the ceasefire, or else we will put sanctions on this and that. We will put tariffs on India. America has been pressurizing India all this while that, oh, you are a downward economy, you're a dead economy. What is all what you have? You just, do a bit of trade with Russia. You're just buying oil from Russia. If you want, we should consider you as a good boy, as an acha bacha, then stop buying oil from Russia. Or else we will keep on imposing tariffs on you. This threat, this, intimidation which Donald Trump is doing, that every night, some funny statement comes that, tomorrow morning when you wake up, there will be new tariffs on India. So this whole tamasha and drama has been happening, and this is all a ploy to put pressure on countries like India and China, which are trading very much with Russia, that look, if you keep on buying oil from Russia, well, you are supporting the Russia's war in Ukraine, and therefore my ceasefire plan will become very ineffective. Putin is saying that, look, I will not follow any ceasefire plan of yours. You do what you want to do. In fact, India has also been very defiant. I mean, there was this note and there was this, briefing which was issued by the Ministry of External Affairs that, look, we will do what we have to do. You cannot pressurize us, right? You cannot pressurize us that hum kisse kya kharide, kab kharide, kaise kharide. You cannot do that. Now, this thing happening is creating a lot of chaos. And now, as a consequence of this whole drama happening between America, Russia, China, and India, because particularly America is putting all guns against China and India over here, Russia is saying that, look, we don't want to abide by this self-imposed restrictions under this so-called Cold War era IRNFT, the Intermediate Nuclear Forces Treaty. And therefore, we will renew the deployment of the short and the intermediate range nuclear missiles. The intermediate nuclear missiles. Intermediate range nuclear missiles. Now, Russian Foreign Ministry said that, look, हम अब कोई भी बाउंडेशन नहीं लेके आना चाहते हैं और जो हमने खुद की अपनी restrictions अडॉप्ट करी हुई थी, because let me tell you, 2019 में अमेरिका ने ऑलरेडी एग्जिट ले लिया था इस ट्रीटी से, और रशिया ने यह कहा था कि देखो, जब तक अमेरिका कोई शॉर्ट या इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं अगर लॉन्च कर रहा, नहीं टारगेट कर रहा, तो हम भी नहीं करेंगे. लेकिन 2019 में अमेरिका ने तो इस ट्रीटी से एग्जिट ले लिया था, ये कह के कि रशिया इस ट्रीटी को वायलेट कर रहा है और रशिया ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स जो कि शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज के हैं वो पोजीशन कर रहा है, which is impacting strategic interest of America. नाउ आज 2025 है. अब 2025 में रशिया ने बोला है कि हम क्यों अपनी सेल्फ इंपोज्ड रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करें, अमेरिका तो वैसे भी इसमें नहीं है. अब ये एकदम से क्या रातों रात कुछ हुआ है? व्लादिमीर पुतिन को सपना आया है, व्लादिमीर पुतिन के सपने में कोई बात आई है, किसी ने उसके कान में कुछ बात बोली है. व्हाट हैज हैपेंड? व्हाट हैज हैपेंड? क्या व्लादिमीर पुतिन को बहुत खुशी है कि इंडिया ने 2-2 कर दिया इंग्लैंड के साथ जो टेस्ट सीरीज थी, मोहम्मद सिराज डीएसपी सिराज ने 3 विकेटें ले ली, तो व्लादिमीर पुतिन खुशी होगी इस बात की कि चलो इसके बदले में हम इस ट्रीटी को एग्जिट कर दें? नो, द कॉज इज समथिंग डिफरेंट. अंडरस्टैंड वन थिंग. अभी कुछ ही दिन पहले क्या हुआ था? अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स पोजीशन करे थे इन द सी ऑफ जापान, कोट एंड कोट पोजीशन करे थे. दैट इज व्हाट द अमेरिकन मीडिया हैज बीन मेंटेनिंग. व्लादिमीर पुतिन
को इस बात से प्रॉब्लम हुई कि सी ऑफ जापान में अमेरिका वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन ड्रिल्स क्यों फॉलो कर रहा है, वहां पे न्यूक्लियर सबमरीन्स क्यों पोजीशन कर रहे हैं, और उसके बदले में दोनों चाइना और रशिया ने एक एक्सरसाइज लॉन्च करी। एक्सरसाइज का नाम क्या है? मैरीटाइम इंटरैक्शन, जिसको जॉइंट सी 2025 भी कहा जा रहा है। ये अगस्त 1 से लेकर अगस्त 5 के बीच पे एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, अभी चल रही है। और इन ड्रिल्स में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, आर्टिलरी फायर एंड सबमरीन रेस्क्यू ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेस फॉलो की जा रही है। नाउ दिस रशिया इज सेइंग दैट दिस इज अ रिस्पॉन्स बिकॉज सी ऑफ जापान, अगर आपने मैप देखा ही है तो सी ऑफ जापान डायरेक्टली रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है। एंड ऑफ कोर्स आई मीन Japan, South Korea, they have been strong allies and, you know, important allies of America since the World War II. Now, is it a coincidence that all this happening right now? Is it a coincidence that China and Russia, as a reaction, deploying this naval drills? Well, the media report says कि China और Russia की जो naval drills है वो पहले से ही planned थी। उसका कोई लिंक अमेरिका का सबमरीन्स को सी ऑफ जापान में पोजीशन करने का कोई लिंक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा अगस्त 3, 2025 को। क्रोनोलॉजी को समझते हैं कि 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में सी ऑफ जापान में चाइना और रशिया के बीच में जॉइंट सी 2025 ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही थी और ये ऑलरेडी प्लान था। अगस्त 3, 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑर्डर करा 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को कि पोजीशन किया जाएगा इन द सी ऑफ जापान एज अ काउंटर टू रशिया। लेकिन उन्होंने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि वो कोई ड्रिल्स या मिलिट्री एक्सरसाइजेस सी ऑफ जापान में फॉलो नहीं कर रहे थे। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स ये भी कंफर्म करते हैं दैट नो यूएस सबमरीन ड्रिल्स वर पार्ट ऑफ whatever exercise was being conducted. It was the joint C 2025 exercise was between China and Russia. Now ये जो मूव आया है of Russia exiting this treaty, this comes after the last 1 week of the tamasha which Donald Trump has been doing, pressurizing India, pressurizing China, stop buying oil from Russia, you are financing the war of Russia and Ukraine, all right, and that is of course a cause of irritant for us as well because nobody can dictate us that what we should do, what we should not do, because Donald Trump thinks कि अगर इंडिया और चाइना रशिया से ऑयल बाय करना बंद कर देते हैं तो शायद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन प्रेशराइज्ड फील करेंगे और वो सीज फायर प्लान को एक्सेप्ट कर लेंगे। How innocent Donald Trump can be. Now what is this IRNFT? Let's talk about this also. ये एक ट्रीटी है जो कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यानी कि 1987 के टाइम पे यूएसए और द देन यूएसएसआर के बीच में साइन करी गई थी। रोनाल्ड रेगन एंड जो तब के जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनके बीच में साइन करी गई थी। अब ये ट्रीटी में क्या डिसाइड किया गया था दैट एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स, एलिमिनेशन ऑफ एंटायर क्लास ऑफ वेपन्स जो कि ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स हैं जिसकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज इस रेंज के बीच में आती है। अब अमेरिका ने इस ट्रीटी को विड्रॉ कर लिया, अमेरिका ने इस ट्रीटी से एग्जिट ले लिया 2019 में। आप भी सोचेंगे कि ये साल में कितनी सारी ट्रीटीज आ गई हैं, कभी इंडस वाटर ट्रीटी, कभी ये ट्रीटी, कभी वो ट्रीटी, बट ये ट्रीटीज इंपॉर्टेंट रहेंगी। माइंड यू, अगले साल प्रीलिम्स का पेपर जब देने जाएंगे आप तो ये ट्रीटीज के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। सो देयरफॉर प्लीज कीप अ ट्रैक ऑफ ऑल दीज हैपनिंग्स एंड करंट अफेयर्स एज वेल। नाउ 2019 में जैसे आपको मैंने बताया कि अमेरिका ने एग्जिट कर लिया था, लेकिन रशिया ने एग्जिट नहीं किया था। अब रशिया ने यह कहा था कि जब तक अमेरिका इन मिसाइल्स को, ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स को कहीं डिप्लॉय नहीं करता जो कि रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को इंपैक्ट करते हैं, तब तक हम भी नहीं करेंगे। तो 1987 में फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन और मिखाइल गोर्बाचेव के बीच में ये ट्रीटी साइन करी गई थी, ठीक है। एंड एज पर दी आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन ये ट्रीटी पहली बार था कि दोनों रशिया और अमेरिका ने अग्री करा कि वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को ग्रेजुअली कट डाउन कर देंगे। And as a result of this deal, both the countries destroyed more than 2600 short, medium and intermediate range missiles. All right? Okay. Now, अब रशिया का रीजन ये ट्रीटी को लीव करना because apparently Russia is saying that the last couple of years अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है टाइफून मिसाइल लॉन्चर्स विद टॉमहॉक क्रूज मिसाइल्स फिलीपाइंस में, डार्क ईगल हाइपरसोनिक सिस्टम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में यूज किए जाते हैं ड्यूरिंग द तालिस्मान साबरे ड्रिल्स। तो अब बेसिकली रशिया ये कह रहा है कि अमेरिका भी तो इन मिसाइल्स को और इन न्यूक्लियर सबमरीन्स को डिप्लॉय कर रहा है, जो कि अगेन कहीं ना कहीं रशिया को थोड़ा अलर्ट कर रहे हैं एंड अलार्म भी कर रहे हैं दैट इफ अमेरिका कैन डू दैट, व्हाई कांट वी डू दैट। Russia has already withdrawn from 2 important treaties, एक तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी फरवरी 2023 में और एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT नवंबर 2023 में। Now the cancellation of another treaty which was between America and Russia, this is again a very very important moment, and again this can again result into a restart of a Cold War style arms race.
रिमेंबर देयर वाज दिस आर्म्स रेस हैपनिंग, तेरे पास ये हथियार है, मेरे पास वो हथियार है, तेरे पास इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है, मेरे पास इतना बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब ये जो आर्म्स रेस था, ये थ्योरीज आती हैं जियोपॉलिटिक्स में, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एंड इवेंचुअली एक कंट्री अपनी कैपेसिटी और अपनी कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है विज़ अ दी अदर कंट्री। एक कंट्री है, अगर उसको लगता है कि भाई जो मेरा अग्रेसर कंट्री है, एनिमी कंट्री है, वो मुझको ज़्यादा पोटेंट मिसाइल्स के साथ अटैक कर सकता है, तो मेरे पास भी वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक हो, मेरे पास भी वो पावर हो कि मैं भी रिटेलिएट कर सकता हूँ विद इक्वल इम्पैक्ट एंड इक्वल डिस्ट्रक्शन, जो मुझे फेस करना पड़ेगा इफ माई अग्रेसर enemy is trying to impact on me. Now that's why these treaties were signed. If you want me to make a video on all the treaties between Russia and America, the USSR and America, let me know in the comment section. I'll make a good video as well for that. However, this is alarming because again, this might result into a Cold War style arms race. And mind you, in the Cold War, there was a bipolar contest between USA and USSR. This time around, it is not only USA and Russia, but it is also China. All right, and therefore this is not very good for the fragmented geopolitical system. Now, what is the utility of this treaty? Number one, the utility in all these years, number one, elimination in the entire class of weapons. तो ये जो land based ballistic और cruise missiles थे, जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में थी, उन सारे के सारे मिसाइल्स को एलिमिनेट कर दिया गया था, ऑलराइट, बिफोर 1991, बिफोर the USSR had collapsed. Number two, reduce the European nuclear risk as well. Europe main battleground था इन missiles के लिए. For example, the US Pershing II and the Soviet SS-20, and removal of these destabilizing and quick strike nuclear weapons, जो कि बहुत कम समय में टारगेट्स विद इन यूरोप को इम्पैक्ट कर सकते थे और एक न्यूक्लियर वॉर यूरोप में हो सकती थी। तो यानी कि इस एलिमिनेशन के साथ यूरोप थोड़ा स्टेबल हुआ था, यूरोप में थोड़ा स्टेबिलिटी आई थी, एंड देयरफॉर इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा थी इन कंटेक्स्ट ऑफ यूरोप। नंबर 3 इज दैट स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल नॉर्म्स। एक प्रेसिडेंट सेट करा गया फॉर अ वेरीफाइबल डिसआर्मामेंट विद ऑन साइट इंस्पेक्शंस, जो कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था इन द कोल्ड वॉर एरा ट्रस्ट बिल्डिंग। एंड दिस ऑल्सो पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर ट्रीटी, जैसे कि स्टार्ट ट्रीटी है, द न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, जिसके चलते लेजिटिमेसी मिली आर्म्स कंट्रोल डिप्लोमेसी को। ऑफकोर्स कोल्ड वॉर टेंशन भी रिड्यूस हुए 1987 में, वैसे पता लग ही रहा था 1987-88 तक आते आते दैट बर्लिन वॉल को भी गिरा जाएगा। अगेन यूएसएसआर थोड़ी अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करेगा। यूएसएसआर के लिए वो जो 1985 से लेकर 1991 का पीरियड था, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिकॉज जो हेजेमनी थी यूएसएसआर की ओवर सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप, वो कम होती जा रही थी। बट कोल्ड वॉर टेंशंस को भी काफ़ी रिड्यूस किया गया। जो आर्म्स रेस वाली मैडनेस थी बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर, वो भी यहाँ पे देखने को मिला कि कम हो गई थी आफ्टर दीज ट्रीटीज, ऑलराइट। बट वेरी इंपॉर्टेंटली सिंबॉलिक, अगर हम सिंबॉलिक वैल्यू की बात करें, ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी फॉर डिप्लोमेसी एंड पीस। यानी कि दो देश जो कि एक दूसरे के साथ टक्कर रखते थे, दो देश जो कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन में थे, नॉट ओनली कंपटीशन इन स्पेस, इन टेक्नोलॉजी, इन डिफेंस, इन वेपन्स, बट इन मेनी अदर एरियाज एज वेल। उन दोनों देशों के बीच में ये ऐतिहासिक ट्रीटी जब साइन होती है, तो वो दोनों देश ये चीज़ मुमकिन कर पाते हैं कि 2700 से भी ज़्यादा जो मिसाइल्स हैं, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, जिसकी रेंज 5000 से 5500 किलोमीटर्स के बीच में आती हैं, उन सभी मिसाइल्स को, उन सभी रेंज वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर पाए थे। बहुत बड़ी उपलब्धि थी डिप्लोमेसी और पीस के लिए, जिसके चलते एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट को भी बढ़ावा मिला ग्लोबली। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन अंडर दिस ट्रीटी। शॉर्ट रेंज मिसाइल वो होती है जो कि लेस देन 500 किलोमीटर होती है अंडर दिस इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर ट्रीटी। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स होती हैं 500 से 5500 किलोमीटर के बीच में, ऑलराइट। Okay, and intercontinental ballistic missiles, of course, which is something which is more than 5,500 kilometers. This is only in context of the IRNFT categories, which was signed between USA and the USSR. तो दोस्तों ये इस वीडियो में था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी दोस्तों हमारा एक और बैच शुरू हो चुका है, ये लास्ट लाइव बैच है जीएस फाउंडेशन का, उन बच्चों के लिए जो कि 2026 में अपना यूपीएससी का पेपर देंगे। इस बैच में जुड़ने के लिए और हम सब फैकल्टीज का अनुभव उठाने के लिए हमको कॉल करें, हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, रीच आउट करें एंड जुड़े हमारे साथ। और ये जो आपकी जर्नी है और ये जो आपका सफ़र है, इसको और आसान बनाएंगे और ज़्यादा अच्छा बनाएंगे, और ऑफ कोर्स इकट्ठे मिलके हम अच्छे मार्क्स भी लेके आएंगे और एक अच्छा रैंक भी लेके आएंगे। ऐसी हमारी कोशिश है। दिन रात हम टीचर्स यही मेहनत कर रहे होते हैं कि हम इकट्ठे मिलके कैसे जीत हासिल कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर द वीडियो। सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।